بعض لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں غیرت بڑی رکھی ہے. مجھے ایسے لوگ یاد رہ جاتے ہیں. میں جب یہاں آیا امامت کے لیے کئی سالوں پہلے، لوگ عقیدت محبت میں علماء کی دعوت کرتے ہیں، ان کی اپنی عقیدت، ان کی اپنی محبت، ان کو ہم ملامت نہیں کرتے. ان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ علماء کی دعوت کریں. ہماری مصروفیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی بلا رہا ہے بس گھر کا کھانا ہی چھوڑ دے آدمی. کسی نے کہا نا کہ میں بدعتی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں، وہ مرتے دم تک اپنے گھر سے کچھ کھایا نہیں کرتے. تو اب میری دعوتیں شروع ہو گئیں. میرے ساتھ ایک پٹھان تھا باجوڑ کا تھا، یا پتہ نہیں دیر گنیر کا، مجھے یاد نہیں. وہ بیچارہ گنے کا رس لگاتا تھا ادھر صدر میں گنے کا رس بیچتا تھا وہ، اور گردوں کا مریض تھا. بہت غریب. ایسے غریب کو اگر فری میں آفر آئے وہ تو خوش ہوگا نا، وہ تو خوش ہوگا. اب میری جب 2-3 دعوتیں ہوئی تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا. اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں، چل بھائی اب منع کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے پتہ ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں، وہ پائے اچھے بناتا ہے، وہ بریانی اچھی بناتا ہے، تو وہ چپلی کباب اچھے بناتا ہے تو بناتا ہے. بھائی اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل، اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا، اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ. اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا، وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. ایک دن وہ مولانا بیچارے دعوت میں پہنچے ہوئے، یہیں بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا. اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے بہتر ہے. جب میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں. میں ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. بس وہ بتا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. آج تو میں ابھی پہنچا ہوں سفر سے، نیند ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. دیکھو کبھی کسی دوسرے کی جیب پہ نظر مت رکھو. اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، بغیرتوں کو بھی کھلاتا ہے. کھاتے ہم نے بغیرت بھی دیکھے، لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے. رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے. اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی، تو سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتا ہے. انہی کے در پہ جانا ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی. یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. پہلے پرانا سعودی عرب کا، شاید اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی، تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو. حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکومت پلٹی، بغاوت ہوئی، تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا. شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے. کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی، مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے. میں شہزادہ ہوں بھائی، میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا، کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کی بغاوت ہوئی. آپ کو پتا ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا، بھاگ گیا. کہاں جاؤں، کون ٹھکانہ دے گا. اس کو وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان. یہ سفر کرتے کرتے، ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا، اسے پوچھا کون ہے، کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے، بغاوت ہو گئی، میں مجبور ہو گیا، تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا، آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ. دیکھو حاجت کیسی چیز ہے. فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے، گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے، شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں، شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا.
गजब में आ गया ना। उसने कहा शेर नर हमेशा शेर नर ही होता है। ऐसा हमारे हजरत जब ये शेर सुनाया करते थे, हजरत की कैफियत होती थी। शेर नर कभी भी गीदड़ नहीं बनता, वो शेर नर ही, शेर भी नहीं, नर, नर शेर, बबर शेर। और अगर कोई हाजत उसे गीदड़ बनाने की कोशिश करे, वो ऐसी हाजत पे 100 जूते मारता है और यहां से ये कह के पीछे वापस चला गया। अब ये हिंदुस्तानी उसके पीछे पीछे, भाई माफ कर दे, मैंने तेरी तौहीन की, मुझसे गलती हो गई, पांव में गिर रहा है, रो रहा है। उसने कहा ना 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 ना, शेर नर ऐसी 100 हाजतों पे 100 जूते मारता है। अल्लाह ये चाहते हैं कि आप अगर फकीर भी हो, मिजाज कैसा रखो, शहजादों वाला। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? फकीर भी हो, मिजाज कैसा रखो, शहजादों वाला। और हमारे हजरत ने रखा। फरमाते थे, मैं जब मदरसे में दारुल उलूम कोरंगी में शेखुल हदीस था, कितना बड़ा मदरसा और वहां के शेखुल हदीस, तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि दारुल उलूम कोरंगी में जो बैल है उसकी तनख्वाह यहाँ के शेखुल हदीस से ज्यादा है। पहले हल भी चलाया जाता था ना वहां, उस पर ज्यादा खर्चा हो रहा है, तनख्वाहें बहुत थोड़ी थी, वसाइल नहीं थे। फरमाते मेरा एक छोटा सा छपड़ा था, एक दिन एक शख्स आया अंडे बेचने वाला ना, कि आप, वो सस्ते अंडे बेच रहा होगा, कि आप हमसे रोज के हिसाब से आप बता दें, मैं इतने अंडे आपके घर देके चला जाया करूंगा। हजरत ने फरमाया हमें जरूरत नहीं है। फरमाया असल बात ये थी कि हमारे पास अंडा खाने के पैसे, बोलो, नहीं थे। अंडा खाने के पैसे नहीं थे। इतने बड़े आलिम जिनको मुफ्ती आजम कहा जाता है। और फरमाया कि एक दिन हमारे घर एक मेहमान आया, हमने दाल रख दी उसके सामने लाके। कुछ दिनों बाद दोबारा आया, हमने दाल रख दी। फिर कई सफर पे कोई हजरत के रिलेटिव थे, फिर आया, हमने दाल रख दी। यानी हमें तो कभी ख्याल भी नहीं आया कि हम दाल खिला रहे हैं उसको, खुद भी खा रहे हैं। तो कहने लगा आपके घर में दाल ही पकती है, इसके अलावा कुछ नहीं पकता। तो हजरत कहते हैं उसके बताने से हमें ख्याल आया कि हम बहुत दिनों से क्या खा रहे हैं, दाल। कहते हैं मैंने उसको तो चुप कराने के लिए क्या, हलाल इतना ही मिलता है उसको चुप कराने के लिए मैंने। लेकिन फरमाते मेरे दिल की हालत ये थी, अल्लाह ने ऐसे मेरे दिल में जज्बा डाला था कि मुझसे बड़ा मालदार दुनिया में कोई नहीं है, मैं इसका भी मुस्तहिक नहीं हूं। अल्लाह मुझे रोजाना दाल खिला रहा है, मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूं कि मुझे खिलाए। साल में एक मरतबा अपने पीरो मुर्शिद, अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाते थे। उसके टिकट के पैसे नहीं होते थे, तो हर महीने तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचा के ट्रेन का टिकट साल में एक दफा खरीदने के काबिल बनते थे। लेकिन फरमाते हैं ऐसी ठाट बाट वाली जिंदगी मैंने रखी हुई थी कि लोग मुझसे कर्जा मांगने के लिए आते कि बहुत बड़ा सेठ है भाई, समझ रहे। मैं बार बार बयान में कहता हूं, बाज लोग हकीकत में गरीब होते हैं, बाज शक्ल से क्या लगते हैं, बोलो, गरीब। दिल का जो गरीब होगा ना, वो शक्ल से क्या लगता है, गरीब। और बाज हकीकत में मालदार होते हैं, शक्ल से गरीब, और बाज हकीकत में गरीब होते हैं, शक्ल से मालदार। ये दिल की कैफियत हैं जो उनके चेहरों पर नुमाया होती हैं। तो अल्लाह जब शुक्र की तौफीक देता है तो दिल मालदार हो जाता है। तो हज़रत फरमाते हैं मुझे तो ये डर था कि मैं, मुझसे शुक्र नहीं अदा हो रहा, अल्लाह की इतनी नेमतें, मुझसे सवाल हुआ तो मेरे पास क्या जवाब होगा। और बंदा क्या कह रहा है, आपके घर रोजाना क्या पक रही है, दाल। लेकिन बंदी अगर जो घर में है वो ठीक हो तो फिर ये कैफियत होती है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल। मेहमान ने कह दिया आपके घर में रोज दाल पक रही है, बंदा अफोर्ड कर सकता है, ये ताना बर्दाश्त कर सकता है, भाई हम जो पका रहे हैं तूने खाना है खा, नहीं तो पतली गली से निकल, यही होगा ना। लेकिन अगर बेगम कह दे कि हमारे घर में रोज क्या पक रहा है, दाल, तो अगर शोहर कंजूस है, कमबख्त पैसे हैं, खर्च नहीं कर रहा, फिर तो 6 ताने मेरी तरफ से और देने चाहिए इस कमबख्त को। दिया है अल्लाह ने तो तू बीवी को दाल क्यों खिला रहा है, हाथ खोल अपने घर वालों पे, खिला, अल्लाह तुझे खिलाएगा। ऐसे कंजूस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे, बेतहाशा पैसा अल्लाह ने दिया और प्याज खरीद रहे हैं दाग वाले मंडी में, वो मुस्कुराते हुए आलू देखे आप लोगों ने। आलू की 2 किस्में हैं, एक आलू जो नॉर्मल कंडीशन में होता है, ना रो रहा होता है ना हंस रहा होता है। कुछ आलू आपको रोते हुए नजर आएंगे, कुछ हंसते हुए नजर आएंगे, ये सस्ते होते हैं क्योंकि ये हंसी की बात है नहीं और आलू हंस रहा है, तो इसका मतलब ये इसमें कोई फॉल्ट है ना, ये सस्ता आलू है। लेकिन ये आलू जब आप घर में लेके जाते हो तो घर वालों को आलू छीलने में मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो भाई तू जरा महंगे आलू खरीद ले यार, क्यों घर वालों को टेंशन दे रहा है। तो मैं पहले तो जुमेरात बाजार, जुम्मा बाजार में खुद ही शॉपिंग करता था ना जाके, अब तो ये गार्ड वार्ड का सेटअप आ गया। तो मैंने देखा एक साहब तलाश कर रहे थे छोटे जो हम अपनी बकरी को खिलाते थे। मैंने कहा यार थोड़ा सा बड़े दरमियाने साइज के प्याज ले लो। कहते हैं मुफ्ती साहब आपने घर वालों को लगता है कि बहुत अय्याशी में रखा हुआ है, ये अय्याशी है ना, पूरा प्याज लेके जा रहे हैं आप, यार थोड़ा टेंशन देके रखना चाहिए। मैंने कहा असल में टेंशन या अय्याशी का मसला नहीं, दिल में बोला, उसको थोड़ी बोला। मसला ये कि दिल अल्लाह ने तेरा इस प्याज की तरह छोटा बनाया है। लैंडलॉर्ड था वो आदमी, लैंडलॉर्ड, दिल तेरा इतना छोटा सा है, तू मर रहा है कि ये पता नहीं कब्र में लेके जाएगा ये पैसा तू। तो अगर पैसा है फिर तो ताना बनता है, ना हो पैसा फिर औरत को भी चाहिए अपने शौहर की आमदन में उसके साथ गुजारा करें। हमारे हजरत अपने घर वालों की बहुत तारीफें करते थे कि अल्लाह ने मुझे ऐसी ज़ौजा दे दी, ऐसी ज़ौजा दे दी, शुक्रगुजार। फरमाया उस गुर्बत में उसने मेरे साथ, हजरत उसको गुर्बत नहीं कहते थे उन हालात में, क्योंकि हजरत कहते थे गुर्बत थोड़ी 2 वक्त की रोटी पेट भर के मिले, गुर्बत कहां है।
ان हालात में कभी कोई जुमला नाशुक्री का घर वालों की जबान से मैंने नहीं सुना। बस एक छोटा सा वाकया, कहते मैं घर वालों की तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा इनको फल खिलाएं। इनको क्या खिलाएं? फल। इनकी सेहत इसलिए खराब हो रही है, फल फ्रूट नहीं खाने को मिल रहे। हजरत कहते हैं मेरे पास फ्रूट के पैसे बोलो। तो मैंने डॉक्टर को तो नहीं कहा कि पैसे नहीं है। जो आदमी ना ऐसे बैठ के पैसे ही नहीं है ऐसे शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर ज़कात को देना शुरू कर दो। अरे कहते हैं डॉक्टर ने अपने इल्म के हिसाब से सही कहा। मैंने दिल में ये सोचा कि भाई अगर मेरी घर वाले को फ्रूट की जरूरत होती तो अल्लाह मुझे फ्रूट के पैसे देता। अल्लाह ने नहीं दिया, इसका मतलब इसको जरूरत नहीं है। अल्लाह ने नहीं दिया, इसका मतलब इसको जरूरत नहीं है, ये बगैर फ्रूट के ठीक हो जाएगी। लेकिन ये मिजाज बीवी का होना भी बोलो, उन्होंने भी ये सोचा हजरत की अहलिया ने कि अगर मुझे फ्रूट की जरूरत होती तो अल्लाह मेरे शौहर को फ्रूट के पैसे देता। नहीं दिए, ये ठीक है, जो दाल रोटी पे सेट हो गए ना उसी पे चलते रहो। ये वाकया कई साल पुराना है। हजरत का इंतकाल हो गया। हजरत की अहलिया माशाअल्लाह अब भी मेरा ख्याल है 95 साल की हो गई होंगी, 90-95 की, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। और जो फ्रूट खाने वाली थी ना सुबह शाम, बहुत सारी चल बसी। समझ में आ रही? जिनकी बीवियों ने कहा फ्रूट खिला, तेरा बाप भी खिलाएगा फ्रूट, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। वो पिज़्ज़े बर्गर और फ्रूट खा खा के उनका इंतकाल हो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जिंदा हैं बगैर फ्रूट के। तवक्कुल देखो, गोरे की डिक्शनरी में तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद, ये है ही नहीं। तो हम भी अंग्रेज बनते जा रहे हैं, कैलकुलेटर लेके हर चीज। जब अल्लाह ने दिया है पैसा फिर तो करो मेरे भाई। हजरत के पास आखिर उम्र में पैसा बहुत आया, तो रिस्क के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। जब अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोले हैं तो हजरत का लाइफ स्टाइल फिर चेंज हुआ है। फिर वो स्टाइल नहीं है, फिर जो हजरत का वीआईपी खाना था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज कमबख्तों के पास पैसा आ जाए तो रहते वो दाल पे ही है। ये भी शरीयत की तालीमात के खिलाफ है। जब दे दिया अल्लाह ने तो खिलाओ भाई घर वालों को। फिर हजरत का नाश्ता सेब के बगैर बोलो नहीं। जब यहां सेब खत्म हो जाते, हजरत के लिए यूरोप से सेब मंगवाए जाते थे। कहा सेब के बगैर नाश्ता, मैं सेब लाजमी है मेरे नाश्ते का हिस्सा है। अगर सेब मार्केट से स्टार्ट है, देखो किस मुल्क में मिल रहा है, ऑर्डर करो। सेब पैसा खर्च किया हजरत ने, नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ। और मैं खुद जाता था हजरत के घर कभी सफाई के लिए, खिदमत के लिए, तो माशाल्लाह गोश्त रोस्ट ये सब चीजें रखी होती थी। बड़ा वीआईपी खाना, शहद जैतून। खाते कम थे मगर खाते खानदानी। घर बड़ा अच्छा, घर जाती नहीं बनाया, मुसाफिर खाना है, निकलना है, जाती की क्या जरूरत है। जो किराए का घर था उसी को बहुत बेहतरीन डेकोरेट किया हुआ था। ऐसा घर जाके सुकून मिलता है यार कि शीश महल में आ गए, कहां आ गए। कंजूस आदमी पैसा आने के बाद भी खर्च बोलो नहीं कर। फिर गाड़ी हजरत ने रखी, ऐसी गाड़ी, शोरूम गए गाड़ी खरीदने के लिए ना, कि भाई गाड़ी चाहिए। उसने कहा ये गाड़ी, उन्होंने हजरत गाड़ी दिखा। गाड़ी मजाक नहीं कर भाई, ये गाड़ी स्टाइल चेंज हुआ ना, तकब्बुर वाला नहीं है, अल्लाह की नेमत के लिए। आज जब पैसा हो तो कंजूस, ये कुरान कहता है। जब उसको खैर पहुंचती है, पैसा आता है, मनुआ कंजूस बन जाता है इंसान। और जब कुरान कहता है जब गुर्बत पहुंच मिलती है इंसान को, नाशुक्रा हो जाता है। इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ। गुर्बत आती है, चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है, हाय महंगाई, हाय पैसे नहीं है, हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है। मुन्ने के अब्बा कभी सेब भी खिला दिया करो। कब रोजाना दाल पे सेट किया हुआ है, शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। बल्कि तुम मुन्ने के अब्बा बने क्यों? जब तुम्हारी जेब में पैसे जब होते तो मुन्ना आता ना मार्केट में। पैसे है नहीं, मुफ्ती साहब का बयान सुन के मुन्ने मार्केट में लाइन लगा दी मुन्नों की। ये भी ताने मिल रहे हैं आजकल। जब खिला नहीं सकते थे पैदा क्यों किया, ये ताना देती है ना औरतें। तो मुन्ने का अब्बा होना जो एक सबसे बड़ी खूबी थी वो ऐप बन गई है सबसे बड़ी, कि पहले सिर्फ ये शौहर थे, अब खातून के जो बच्चा है उसके अब्बा भी है। डबल रिश्ता हो गया ना। लेकिन यही रिश्ता क्या बन गया है? ताना। तो कुरान कहता है इंसान जो नाशुक्रा है, जब गुर्बत मिलती है उसको शोर शराबा, चीखना चिल्लाना, शुक्र नहीं अदा करता, जज़ा फज़ा सब्र नहीं करता। वइदा मस्सहुल खैरु मनुआ, जब दौलत के अंबार लगते हैं, रेल पेल कंजूसी करना शुरू कि खत्म ना हो जाए। इल्लल मुसल्लीन, कुरान कहता है हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जब गुर्बत होती है तो सब्र करते हैं, जब दौलत आती है तो सखावत के दरिया बन जाते हैं।